Hello listening friends and welcome to this broadcast. श्रोता मित्रों नमस्कार और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। We are calling this series of messages, What Does Jesus Think? हमने इस श्रृंखला को शीर्षक दिया है यीशु क्या सोचता है। And we hope this series of messages is blessing your life and the lives of those around you. और हमें आशा है कि इस संदेश श्रृंखला के द्वारा आपके और आपके साथ के लोगों के जीवन आशीषमय बन रहे होंगे। In our last broadcast, we saw what Jesus thinks about using the opportunities he brings us to tell others about him. पिछले प्रसारण में हमने देखा कि यीशु उन अवसरों के बारे में क्या सोचता है जो वो हमें दूसरों को उसके बारे में बताने के लिए देता है। We saw that no matter how many opportunities we have missed in the past, हमने देखा कि अतीत में हमने चाहे कितने भी अवसर खोए हों, Jesus wants us to look to those opportunities that he brings us today and tomorrow. यीशु चाहता है कि हम उन अवसरों पर ध्यान दें जो वो आज और कल हमारे लिए लेकर आता है। That is the joy and the hope of the gospel. सुसमाचार का आनंद और आशा ये है That it is never too late in Jesus' eyes for us to turn and follow him. कि यीशु की दृष्टि में हमारे उसकी ओर मुड़ने और उसके पीछे चलने में कभी बहुत देर नहीं होती। Today we will look at what Jesus has to say to the church in Laodicea and to those who are half-hearted toward him. आज हम देखेंगे कि यीशु लौदीकिया की कलीसिया और उनसे जो आधे हृदय से उसको मानते हैं उनसे क्या कहता है। Some of you may have heard about the latest trend in sports, and it is called extreme sports. शायद आप में से कईयों ने खेलों में आए एक नए रुझान के बारे में सुना होगा और इसे चरम सीमा के खेल कहते हैं। Extreme sports is any sport that is taken to a new extreme. ये चरम स्तर के खेल कोई भी खेल हो सकते हैं जिसे एक नए चरम तक ले जाया जाता है। For example, snow skiing down a steep slope is just sport. उदाहरण के लिए पैरों में एक यंत्र पहनकर बर्फ पर ऊंचाई से नीचे फिसलना ये केवल एक खेल है। Skiing down a steep slope after jumping from a helicopter is an extreme sport. लेकिन इसी खेल को हेलीकॉप्टर से कूदकर बर्फ पर फिसलना ये चरम स्तर का खेल है। Riding mountain bicycles is a sport. साइकिल पर्वतारोहण एक खेल है। But biking down a snow-covered mountain at 70 miles an hour is an extreme sport. परंतु बर्फ से ढके हुए पर्वत से साइकिल से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आना ये चरम स्तर का खेल है। And people love to watch extreme sports on television. और लोगों को इन चरम स्तर के खेलों को टीवी पर देखना अच्छा लगता है। But all of us who watch these athletes perform these extreme sports, परंतु हम सभी जो इन खिलाड़ियों को ये चरम स्तर के खेल खेलते देखते हैं, we watch while we're sitting in our comfortable chairs and sitting safely in our houses. हम अपने घरों में आरामदायक कुर्सियों और घर में सुरक्षित बैठे हुए इन्हें देखते हैं। We sit there and watch with our hearts racing, shaking our heads in disbelief. हम बैठे देखते हैं और हमारे हृदय कांपते हैं और हम अविश्वास में अपने सिरों को हिलाते हैं। We pray to God that our kids would never attempt something that dangerous. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे कभी इस तरह के खतरनाक काम ना करें। But we overlook one very important matter. परंतु हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को अनदेखा कर जाते हैं। Do you want to know what it is? आप जानना चाहते हैं वो क्या है? Before I tell you, let me ask you this. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, Who is the person who is taking the greater risk, the athlete or the TV viewer? इनमें से कौन सा व्यक्ति ज्यादा खतरा उठा रहा है, खिलाड़ी या टीवी देखने वाला व्यक्ति? Today the television watching champion is in greater danger than the extreme athlete. आज टीवी देखने वाला महारथी उस चरम स्तर के खिलाड़ी से ज्यादा खतरे में है। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because when we sit back watching, our blood pressure rises. क्योंकि जब हम बैठे टीवी देखते हैं तो हमारा रक्तचाप बढ़ता है। While we are sitting in front of the television, we eat more than we need, and that food can cause our arteries to be closed. टीवी के सामने बैठे हुए हम जरूरत से ज्यादा भोजन खा जाते हैं और इससे हमारी धमनियां बंद हो सकती हैं। Then your
internal stress often mounts. फिर अक्सर आपका अंदरूनी तनाव बढ़ जाता है। These athletes, on the other hand, who seem crazy to us, are keeping their bodies fit. वहीं दूसरी तरफ ये खिलाड़ी जो हमें पागल दिखते हैं, वो अपने शरीरों को स्वस्थ रखते हैं। And because of their fitness, their stress level is lower and their lungs are more efficient. और अपनी स्वस्थता के कारण उनका तनाव स्तर बहुत कम रहता है और उनके फेफड़े ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। So in reality, hurling through the air is less risky than sitting in a chair eating ice cream. तो वास्तव में हवा से खुद को नीचे गिराना कुर्सी पर बैठकर आइसक्रीम खाने से कम खतरनाक है। My listening friend, let me tell you that it works the same way in the Christian life. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। Those who sit back and do nothing and criticize everything, वो जो खाली बैठकर करते कुछ नहीं है परंतु आलोचना हर चीज की करते हैं, they are in far greater danger than those who roll up their sleeves and do the work of Christ. उन्हें उनसे कहीं ज्यादा खतरा है जो अपने आस्तीन चढ़ाकर मसीह के काम में लगे रहते हैं। Those who are always receiving and consuming are in greater danger than those who are always giving. वो जो हमेशा प्राप्त कर रहे हैं और खा रहे हैं, उन्हें उनसे ज्यादा खतरा है जो हमेशा दे रहे हैं। Those who are usually standing by and watching are at far more risk than the doers. वो जो केवल खड़े होकर देख रहे हैं, वो करने वालों से कहीं ज्यादा खतरे में हैं। In fact, the spiritually lazy are in greater danger than those who are taking risks for God. बल्कि जो आत्मिक रूप से आलसी हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा खतरे में हैं जो परमेश्वर के लिए खतरा उठा रहे हैं। Being spiritually lazy is even more dangerous than being physically lazy. आत्मिक रूप से आलसी होना शारीरिक रीति से आलसी होने से कहीं अधिक खतरनाक है। If you are spiritually lazy, you may feel safe, but you are being destroyed from the inside out. यदि आप आत्मिक रूप से आलसी हैं, तो आपको शायद लगेगा कि आप सुरक्षित हैं, परंतु आप अंदर से बाहर की तरफ तबाह हो रहे हैं। The spiritually lazy usually develop the following symptoms. आत्मिक रूप से आलसी व्यक्ति में आमतौर पर ये लक्षण होते हैं: Weaker love for Christ and weaker faith muscles. मसीह के प्रति कमजोर प्रेम और विश्वास की कमजोर मांसपेशियां, Weaker lungs to inhale the grace and the forgiveness of God. परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह को अंदर खींचने के लिए कमजोर फेफड़े, Weaker hearts for God. परमेश्वर के लिए कमजोर हृदय, And ultimately, spiritual laziness can cause spiritual death. और अंततः आत्मिक आलस आत्मिक मृत्यु का कारण बन सकता है। And spiritual death is far more devastating than physical death. और आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु से कहीं अधिक विनाशकारी है। According to Jesus, the spiritually lazy people of Laodicea were in danger of being thrown up by Jesus. यीशु के अनुसार लौदीकिया के आत्मिक रूप से आलसी लोग यीशु के द्वारा फेंक दिए जाने के खतरे में थे। Listen to what Jesus said about these people in Revelation chapter 3 verses 14 to 22. सुनिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 14 से 22 पदों में यीशु ने इन लोगों के बारे में क्या कहा। लौदीकिया के कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले के तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले के पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले
कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Laodicea had the distinction of being the only church of which the risen Christ had nothing good to say. लौदीकिया की कलीसिया ही एकमात्र कलीसिया थी जिसके बारे में पुनरुत्थित मसीह के पास कुछ भी अच्छा कहने के लिए नहीं था। Laodicea was a remarkable city, लौदीकिया एक असाधारण शहर था, a city of worldly success. संसारिक सफलता का शहर। Business consultants would have pointed to that city as a model that all other cities should copy. व्यवसायी विशेषज्ञ एक आदर्श शहर के रूप में इसी की ओर इशारा करते थे जिसकी नकल बाकी शहरों को करनी चाहिए। It was a great financial center. ये बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र था। Every bank in the world had an office in Laodicea. दुनिया के हर बैंक की एक शाखा लौदीकिया में थी। Laodicea was the manufacturing center of Asia Minor. लौदीकिया एशिया माइनर का उत्पादन केंद्र था। It was the center of clothing manufacturing. ये कपड़ा उत्पाद का केंद्र था। The sheep that grazed around Laodicea were famous for their soft, violet, black, glossy wool. वो भेड़ें जो लौदीकिया में पाली जाती थी वो कोमल, मखमली, काली, चमकदार ऊन के लिए प्रसिद्ध थीं। Laodicea also was the medical center of the whole area. लौदीकिया उस सारे क्षेत्र का चिकित्सा केंद्र भी था। The nearby temple of Mankoro had a medical school. पास के ही मेनक्रोआ मंदिर में एक चिकित्सा विद्यालय था। In fact, that medical school became known worldwide for the discovery of an ointment that cured eye diseases. बल्कि वो चिकित्सा स्कूल एक सुरमे की खोज के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया जो आंखों की बीमारियों के लिए था। So here are the facts about Laodicea. तो ये है लौदीकिया के बारे में तथ्य। It was the financial capital of the world. ये दुनिया की आर्थिक राजधानी थी। It was the clothing manufacturing capital of the world. ये दुनिया की कपड़ा उत्पाद राजधानी थी। It was the medical center of the world. ये दुनिया का चिकित्सा केंद्र था। And yet, listen to Jesus' message to them. और फिर भी उनके लिए यीशु के संदेश को सुनिए। He said, you might be the financial capital of the world, उसने कहा तुम दुनिया की आर्थिक राजधानी हो सकते हो, but your spiritual poverty is grinding you. परंतु तुम्हारी आत्मिक निर्धनता तुम्हें पीस रही है। You may be the clothing center of the world, तुम दुनिया के कपड़ा उत्पाद केंद्र हो सकते हो, but spiritually you are naked and should be ashamed. परंतु आत्मिक रूप से तुम नंगे हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। You may boast of your eye powder and ointment, तुम अपने आंखों के सुरमे और मरहम के खोज पर घमंड कर सकते हो, but in reality you are so spiritually blind that you cannot even see your desperate condition. परंतु वास्तव में तुम आत्मिक रूप से इतने अंधे हो कि तुम अपनी ही अति गंभीर आत्मिक दशा को नहीं देख सकते। Once again, Jesus takes what is characteristic of the city and the culture and applies it to the church. एक बार फिर से यीशु शहर की किसी विशेषता को और वहां की संस्कृति को लेकर कलीसिया पर लागू करता है। And there is a fourth tragic symptom that Jesus points out to the believers in Laodicea. और फिर एक चौथा दुखद लक्षण है जो यीशु लौदीकिया के विश्वासियों को दिखाता है। The water supply to the city of Laodicea traveled several miles through an underground aqueduct. लौदीकिया शहर में आने वाला पानी कई मील तक जमीन के अंदर कृत्रिम जल मार्ग से होकर आता था। By the time it reached the city, the water was foul, dirty and tepid. और जब तक ये पानी शहर तक पहुंचता ये गंदा, धुंधला और न पीने लायक बन जाता था। It was not hot enough to relax or restore like the hot springs of nearby Heliopolis. ये पानी पास के हेरियोपोलिस के सोतों की तरह पर्याप्त गर्म नहीं था कि ये नहाने से आराम दे सके या थकावट को दूर कर सके। And it was not cold enough to refresh like the streams of nearby Colossae. और ये पास के कोलोसी के सोतों के समान इतना ठंडा भी नहीं था कि ताजगी प्रदान कर सके। The water supplies was useful to drink only if you want to vomit. ये पानी केवल तभी उपयोगी था यदि आप उल्टी करना चाहते हो। And Jesus was saying to the Christians in Laodicea, और यीशु लौदीकिया के मसीहियों से कह रहा था,
You are like your city water. तुम अपने शहर के पानी के समान हो। Your indifference is making me sick. तुम्हारी उदासीनता मुझे उबा रही है। Your apathy is making me nauseous. तुम्हारी जड़ता मुझे विचलित कर रही है। Your half-hearted commitment makes me feel like I drank a glass of your foul water. तुम्हारा आधे हृदय का समर्पण मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने तुम्हारे गंदे पानी का एक कटोरा पी लिया हो। Someone said something very interesting. किसी ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है। He said that there are some churches that make Jesus weep. उसने कहा कई कलीसियाएं हैं जो यीशु को रुलाती हैं। There are some churches that makes Jesus angry. कुछ कलीसियाएं हैं जो यीशु को गुस्सा दिलाती हैं। And then there are churches that will make Jesus sick. और फिर कुछ कलीसियाएं हैं जो यीशु को उबाती हैं। And the resurrected Jesus Christ does three things here. और पुनरुत्थित मसीह यहाँ 3 काम करता है। First, he alerts the people to their disastrous condition. पहला, वो लोगों को उनकी विनाशकारी दशा से सावधान करता है। Secondly, he advises them to turn away from their disastrous condition. दूसरा, वो उन्हें उनकी विनाशकारी स्थिति से हटने की सलाह देता है। And thirdly, he awards them if they renounce their disastrous condition. और तीसरा, यदि वो अपनी विनाशकारी स्थिति को त्याग देते हैं तो वो उन्हें प्रतिफल देता है। Let me repeat those three things again because we will not have time to go through them. मैं इन 3 बातों को फिर से दोहराता हूं क्योंकि हमारे पास इन पर विस्तार से विचार करने का समय नहीं है। And in the next broadcast, we will look at those three things in detail. और अगले प्रसारण में हम इन 3 बातों पर विस्तार पूर्वक गौर करेंगे। First, he alerts the believers. पहली ये कि वो विश्वासियों को सचेत करता है। And secondly, he advises the believers. और दूसरा, वो विश्वासियों को सम्मति देता है। And thirdly, he awards the repentant believers. और तीसरा, वो पश्चाताप करने वाले विश्वासियों को प्रतिफल देता है। I hope you tune in next time so you can hear in detail those three things. मुझे आशा है कि आप अगली बार भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे ताकि आप इन 3 बातों को विस्तार से जान सकें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।